Hello everyone. In this video we will see a question on multinomial theorem. Multinomial theorem, or you can say that the coefficient method, or you can say that the distribution are alike objects. Okay. So this question is find the number of ways to get the sum of the digit 16. Okay. Sum of the digit 16 when 4 dice are thrown. Okay. 4 dice are thrown. Okay. So how to do such type of problems? So first of all, here take the variable. Let the variable is x. Okay. So this is very important step. Variable is x, and then the outcomes, all the possible outcomes of a die will go into the power of x. Okay. So for example, x की power 1, x की power 2, x की power 3, x की power 4, x की power 5 and x की power 6. That means when a die is thrown, then the outcomes will be 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6. So that outcomes will go to the power of x. And here x1 plus x square plus x3 plus x4 x की power 5 plus x की power 6. So that represent the all possible outcomes. We have representing the all possible outcomes in terms of the variable x, where the possible outcomes goes into the power of variable x. This is the case when a die is thrown. Second die, we are also having the same thing. Okay, x3 plus x4 plus x5 plus x6. For third one is same thing, x square plus x cube plus x4 plus x5 plus x की power 6 and x1 plus x2 plus x3 plus x4 plus x5 x की power 6. So for all the dice, we have returned the outcomes in the power of a variable x. Okay, this is we do in coefficient method. Now what happens? You have to find out the number of ways to get the sum of the digit 16 when 4 dice are thrown. Now, when you will multiply this x की power 1 with x की power 1 with x की power 1 with the x की power 1, क्या होगा? At that time you will get the x की power 4. When you multiply x की power 1 with the x की power 2 with the x की power 1 with the x की power 1, then you will get x की power 5. Similarly, like that, x की power 6, like that maximum x की power 6 multiplied by x की power 6 multiplied by x की power 6, that will be x की power 24. So this, now when after multiplication you will see that the sum is 4, the sum is 5, the sum is 6, the sum is 24 when a 4 dice are thrown. Correct? And we want the sum 16. Correct? So that is equivalently we can write it as a coefficient of x की power 16 in x की power 1, x की power 2, x की power 3, x की power 4, x की power 5, x की power 6 और इसकी power 4. This is 4 for 4 dice. Okay, these are the way to write down the all possible outcomes when a die is thrown. In that way we write x is variable. Okay, now this can be easily now solved by using the concept of infinite GP, binomial theorem and all those things. The coefficient of x की power 16 in, I can take x common. So this is x की power 4. Okay. So 1 plus x square plus x cube plus x की power 4 plus x की power 5 और इसकी power 4. क्या किया मैंने यहाँ से x को बाहर ले लिया. So that क्या है कि ये जो GP का सम है वो मैं इजीली फाइंड आउट कर सकता है. अब x की पावर 16 निकालना है, x की पावर 4 ऑलरेडी आ चुका है, दैट मीन्स इसमें मुझे x की पावर 12 निकालना है. सो दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 12 इन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस x की पावर 4 प्लस x की पावर 5 इसकी पावर 4. अब यहाँ पे जीपी का सम लगाते हैं. यहाँ पर जीपी का सम लगाते हैं. जीपी का सम कैसे लगाएंगे उसको चेकआउट करते हैं. इसको लगाने के लिए आप ऐसे करेंगे, ये हो जाएगा 1, ठीक है, माइनस एक्स की पावर 6 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स, इसकी पावर हो जाएगी 4. दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स
की पावर 12 इन दिस एक्सप्रेशन। अब ये एक्सप्रेशन आपका मेन हो गया, ये एक्सप्रेशन आपका मेन एक्सप्रेशन हो गया, यहाँ तक कि हम पहुँच गए। ओके, अब इसके बाद में क्या करना है देखिए, अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आएगा, वो क्या कि इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स की पावर 6 और इसकी पावर 4 इंटू 1 माइनस एक्स इसकी पावर -4, ये लिख सकते हैं। अब मुझे निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 12 इन दिस। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये प्रोडक्ट ऑफ टू बाइनोमियल एक्सपांसन है, जिसमें से ये पॉजिटिव इंडेक्स के लिए बाइनोमियल एक्सपांसन है, पॉजिटिव इंडेक्स के लिए, और ये आपका नेगेटिव इंडेक्स के लिए, ठीक है। तो पॉजिटिव इंडेक्स के लिए बाइनोमियल एक्सपांसन और नेगेटिव इंडेक्स के लिए बाइनोमियल एक्सपांसन। अब यहाँ पे कमाल आता है, क्या देखिए, ये जो 1 माइनस एक्स की पावर 6 की पावर 4 है, इसका एक्सपांसन तो मैं लिख सकता हूँ 1, पहला टर्म 1 होगा, फिर -4c1 एक्स की पावर 6, फिर +4c2 एक्स की पावर 6 और इसकी पावर 2, मतलब आ गया ये एक्स की पावर 12। और फिर आपके पास में हायर पावर आएगा, आपको हायर पावर की जरूरत नहीं है, आप एक्स की पावर 12 में ही बात कर रहे हैं, तो इसको यहाँ तक के लिख के ख़त्म कर दीजिए, करेक्ट है। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी तो है 1 माइनस एक्स की पावर -4 से। अब इसमें आते हैं, देखो जब आपके पास में ऐसा चीज़ रहेगा ना, कैसे 1 माइनस एक्स की पावर -n है, इसका जब हम एक्सपेंशन करते हैं तब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर r इज गिवन बाय, किससे दिया जाता है, n प्लस r माइनस 1 सी आर से। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, मतलब x की पावर r, तो यहाँ नीचे में यार ये n प्लस r माइनस 1, ये n आ जाएगा यहाँ पर, करेक्ट। तो ये फार्मूला आपको याद हो। तो अब क्या होगा कि 1 माइनस एक्स की पावर -4 का पूरा एक्सपेंशन लिखने की जरूरत नहीं है, जिस जो जो आपको कोएफिशिएंट चाहिए ना वो आपको सीधा आ जाएगा, मतलब जिस एक्स की जितनी पावर है उसके कोएफिशिएंट से मतलब है हमको, क्यों, क्योंकि हमको तो क्या निकालना है, नंबर ऑफ वेज टू गेट द सम ऑफ द डिजिट 16 निकालना है, करेक्ट है। तो वो सारी चीज करते करते हम पहुंचे, ये इक्वल किसके बराबर होगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 12 के। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 12 के ये इक्वल होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 12 इन 1 माइनस 4 एक्स की पावर 6, 4 से 2 6 होता है, 6 एक्स की पावर 12 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर -4, ये हो गया। अब आप देखना ज़रा ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा वो क्या बात है। वो ये है कि भाई ऐसा है कि यहाँ 1 है, इस 1 को यहाँ पर x की पावर 12 के कोएफिशिएंट से, मैंने x की पावर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 12 मिल जाएगा। तो यहाँ x की पावर 12 के लिए आपको 4 + 12 -1c 12 करना पड़ेगा, करेक्ट है। ये आ जाएगा आपके पास में कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 12। और यहाँ देखिए, यहाँ -4 एक्स की पावर 6 एक्स की पावर 6 है, तो यहाँ एक्स की पावर 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो उसका कोएफिशिएंट बनेगा। यहाँ ऑलरेडी 4 है, यहाँ पे आ जाएगा 4, एक्स की पावर 6 चाहिए, 6 - 1 6, और यहाँ एक्स की पावर ऑलरेडी 12 है, तो इसके 1 से मल्टीप्लाइड होगा, फर्स्ट टर्म 1 ही रहेगा, उससे मल्टीप्लाइड होगा, तो ये तो हो गया सिंपली 6। तो बस हो गया आपके पास में, ये बन जाएगा 16 - 1 15c 12, और ये 4 इंटू 9c 6, और ये +6, 15c 12 को आप लिख सकते हैं 15c 3, 9c 6 को लिख सकते हैं 9c 3। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 15 × 14 × 13, और ये कितना है 3 × 2 × 1, ये करेंगे तो ये 5 टाइम्स कट जाएगा, ये 7 टाइम्स कट जाएगा। ओके, अभी ये कितना आ गया 15, 65 × 7 5 42, ओके 7 × 5 35 45, ओके 455 आ गया, ये आ गया 455 माइनस। अब 9c3 को कैलकुलेट करते हैं, 9c3 होगा 9 × 8 × 7, 3 × 2 × 1, ओके 3 से ये 3 बार
ये 4 बार, तो ये हो जाएगा 12, 84 आ जाएगा, 84 है ना, करेक्ट, ठीक है, ओके 84। और फिर 4 से मल्टीप्लाइड भी करना है, ये 4 भी मल्टीप्लाइड करते 6, 336 आ जाएगा, 336 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 455 माइनस 330, और ये हो जाएगा आपका 125, करेक्ट है। तो 125 इसका सही आंसर है। तो ये है आपका कोएफिशिएंट मेथड।